Hello everyone, welcome back to the classroom. Hi, in this class what we are going to start with another kind of basics, that means basics part 2 for your information systems. बेटा till date अभी तक what we have covered, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? That means we know about system, हमें सिस्टम के बारे में पता है, इंफॉर्मेशन के बारे में पता है. मोreover we know about that how the information will be processed, कि कैसे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है. एंड आफ्टर दैट देयर आर पर्टिकुलरली टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. एक मैनुअल, जैसे पुराने जमाने में होता था, वो चिट्ठी बेच के सेटिंग हुआ करती थी, है ना. अब क्या होता है, अब तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये सब चीजों पे चलता है. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. पहले ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था, नाउ कन्वेंशनल सिस्टम हुआ करता था, नाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी कंप्यूटर बेस्ड. सर इट इज मोबाइल बेस्ड. अच्छा ठीक है, इट हैज टर्न्ड आउट टू बी कंप्यूटर बेस्ड. तो पहले क्या होता था, आपको क्लास लेने जाना पड़ता था, कन्वेंशनल सिस्टम. नाउ एवरीथिंग इज ओवर देयर ऑन दिस कंप्यूटर बेस्ड, राइट. सो आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड अबाउट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, CVIS जिसको कहते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड कि कैसे आप CVIS को वेरियस डिफरेंट एरियाज के अंदर यूज कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज दैट. Now in this class we will talk about again the information systems, because we are talking about the basic parts, information systems, right. So we will be talking about what are the various components in information system. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कितने टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी मौजूद होते हैं, राइट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. बेटा प्लीज टू रिमेम्बर, जहां जहां पे क्वेश्चन बन सकता है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ फ्रॉम माय साइड इटसेल्फ. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू विद द नोट्स, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. ओके, गॉट इट. द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इटसेल्फ. oops सर वेयर आर यू? आई एम देयर इटसेल्फ. पर मेरे को देख के क्या करोगे तुम, है ना. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम, that contains various components yani ki you can say elements. In examination you may get question being like that, what are the various components, what are the various elements as well. ठीक है. So I mean हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा that what is the particular component के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, what is the name of the component and what is the description as well. If I talk about component, the very first part, the very first element is people. पीपल, लोग, एग्जैक्टली लोग तो होंगे ही ना, लोग तो होंगे ही, वरना यूज कौन करेगा. सो द एंड ऑब्जेक्टिव, राइट, बिकॉज इट इज यूजफुल टू पीपल. CVIS is useful to people. They may be within the organization. Within the organization, you can say internal users. Right, internal users जैसे कि the information which is over there that can be used by the people who are within the organization. जैसे कि आपका you can say staff है, आपका management है, it may be useful for them as well, right. Got it. Now the next things are, they may be useful to people who are outside the organization, or you can say who are outside the entity, outside the organization. They are external users. अब ये external users से क्या मतलब है? External users means the people who are not internal user. ये कैसी बात हुई बेटा? Things are being like external users, जैसे कि government है, right? Government is even over there. Your customers are there, your vendors are there, your customers are over there. They also need certain kind of information. They are over there. Vendors are over there, right. Vendors are even over there. So ये सारी की सारी जो कहानी है, right. So information may be used by internal users, that may be used by external users, right. The next part which is over there, that is hardware. Hardware, software, we know that. क्या होता है hardware? सर हार्डवेयर जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट्स. क्या बात है. Hardware includes physical components. सर एम्बुलेंस आ रही है आपके यहाँ पे? एम्बुलेंस नहीं आ रही यार. That mock drill practice is going on. हाँ, तो मेरा स्टाफ नहीं है mock drill practice करने. So every time this happens a lot. I mean this such kind of things are even over there. आती रहेगी, कोई बात नहीं.
बंद नहीं करवा सकता मैं यार, ये सेक्रेटरी नहीं हूं ना मैं हमारे यहाँ बिल्डिंग का, एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनना पड़ेगा कंप्यूटर सेक्रेटरी छोड़ के, राइट। सो यू आर राइट दैट यस इट इंक्लूड्स फिजिकल कंपोनेंट्स। सर बंद हो गया, बीच में आता रहेगा, बीच में आता जाता रहेगा। सो इट इंक्लूड्स फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, दैट इज योर सीपीयू। आगे ना फिर से देखो, योर इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, राइट। So they are hardwares. I mean, they are particularly hardwares. It refers to notes थोड़े और शानदार बनाने शुरू करेंगे बेटा। It refers to दो ही पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है वैसे। We do not have 3 parts over here. So it is particularly divided into 2 parts only. The very first part is machines, and the next part which is over there, that is media. If I talk about machine, तो machine से क्या मतलब है? machine का मतलब है just like your computer, your monitor, right? Your computer, your monitor, your disk drives, your various kind of hard disk drives, right? There are printers, scanner, जो भी है, that is over there operating as a part of machine itself, right? Next part, that is if I talk about media, तो ये media क्या होता है? I mean just like floppy disk. Floppy disk देखिए कभी? Your floppy disk, I mean the various kind of disk which you have. अच्छा paper forms होती है जैसे? Paper forms होती है. Paper forms etc. So they are classified into media only. So right, मतलब particularly if I talk about media ना, तो the various kind of, these are a kind of storage devices. जैसे आपके पास USB pen drives होती हैं, right? There are various kind of storage devices which are referred over here being as media, but उसमें pen drive को मत लिख लेना please. So this is a common feature, right? It's for your understanding particularly. Now moving on to next part. बेटा ये दोनों points तो हमने कर लिए। सर इसके बाद और क्या include होता है? If I talk about the next part, we do have softwares over here. अब ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सर ये हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर पर्टिकुलरली कंप्यूटर प्रोग्राम्स। They are particularly computer programs and their user documentation and manual. तो बेटा देखो, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आप पर्टिकुलरली यूज करते हो, राइट? बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो जब आप कोई भी क्लास लेते हो, राइट? व्हेनेवर आई मीन यू टेक अ पर्टिकुलर क्लास, सो दैट क्लास इज आइदर ओवर देयर इन ऑनलाइन मोड और इन ऑफलाइन मोड। अब देखो क्या होता है, सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू हैव दैट क्लास दैट इज ओवर देयर इन ऑनलाइन मोड, या तो वो आती है ऑफलाइन मोड पे, राइट? या तो ऑफलाइन मोड पे आती है। इसके सेटअप को आप इंस्टॉल करते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द सेटअप। आफ्टर इंस्टॉलिंग इट यू विल गो एज पर द सेटअप इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो दैट इज योर सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर एज वेल। इट the various kind of computer programs along with their documentation and manual. बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज करते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं which you use, right? There are number of applications which are over there on your mobile itself, right? I mean they are also softwares. Got it? Yes please. Sir ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम is particularly referred to as machine readable instructions. Machine readable instructions, right? Which these instructions direct CBIS to produce useful information. ताकि these programs particularly give the instruction to CBIS. ये क्या करते हैं? CBIS को instructions देते हैं so that your CBIS is going to find out the useful data,
They are going to find out the useful data from, or you can say the useful information from the data itself. डेटा के यहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन ये निकाल कर ला पाए. गॉट इट? अंडरस्टूड? थोड़े थोड़े भारी लग रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस क्लास इजी टिल 40 मिनट्स. 40 मिनट्स तक तो मैं किसी भी क्लास को इजी नहीं करता. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट. अगले एस्पेक्ट पे चलते हैं बेटा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर प्रोग्राम. बट आई मीन व्हाट आर द वेरियस थिंग्स व्हिच आर ओवर देयर इन सॉफ्टवेयर. ओके, बताता हूं. देखो, you can pause over here. You can pause over here. Now, if I talk about software, this term software particularly includes three parts. It has been, or you can say it has been classified in 3 parts. 3 parts के अंदर ये होती है. The very first part is there are different kind of operating systems. Sir, operating system जैसे वो हमारे पास Android आता है और एक operating system iOS है. एग्जैक्टली ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर्स के. इफ आई टॉक अबाउट यूनिक्स, चलो आपने विंडोज तो सुना ही होगा. एग्जांपल विंडोज, राइट, यूनिक्स, लिनक्स. सो बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. राइट, आफ्टर दैट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, they are designed particularly for specific tasks. Right? Example, आपके पास busy है, busy, तो it will cover your accounts plus taxation. Right? आपके पास SAP है, ERP है, depending upon that is over there only for accounting and taxation purposes. आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा आपकी कंपनी में, सो वो क्या होगा, दैट वुड बी बेस्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर टास्क ओनली. दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. एंड आफ्टर दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ यूटिलिटी टूल्स. देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ यूटिलिटी टूल्स. कुछ यूटिलिटी टूल्स होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं which acts as particularly tools only. Okay, got it? Yes, please. Now, the next part which is over there, that refers to data. अब डेटा ही नहीं होगा आपके पास तो आपका कंप्यूटर सिस्टम का क्या अचार डालोगे? नहीं डालोगे अचार. Okay, so what is data? Data is particularly the facts which are organized, or I mean facts used by programs. The facts which are used by programs to produce useful information. To produce useful information. Right? Just like programs, data, जो भी आपने मशीन में रखा हुआ है, in order to get, I mean, you have the certain kind of information आपके पास होती है. उस information में से the information which programs are using, they are known as data. Okay, this data may be alphanumeric, right? That may be into text, that may be into image, that may be over there video or audio, किसी भी फॉर्म में है. So whatever the data which is used by program, उसको क्या कहते हैं? Whatever the information or facts used by program to give you useful information, that is data itself. उसको data कहते हैं, जो भी information यूज की गई है. Right? Got it? So network over here refers to communication media. Communication media. If I talk about this communication media, so that means if you talk about employees within the organization, कि वो आपस में कैसे interact करते हैं, क्या इशारा लगाते हैं, ओए इधर, ऐसे बोलते नहीं. How they are interacting, they are using through internet, right? Or they are using a common folder. कैसे वो interact करते हैं, right? How they are interacting. So about this media, we are going to have a long discussion on this media. Relax, okay, relax. पूरी डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा मीडिया के बारे में सब बताओगे आप. हाँ बिल्कुल. ओके,
तो चलो अब जो चीजें आपने मेरे साथ देखी हैं, लेट अस कंसिडर दीज थिंग्स इन डिटेल। ये डिटेल नहीं दिख रही है, ये डिटेल। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट पीपल, एक एक करके अब इन चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरा और डिटेल में अच्छे से समझना है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट पीपल, if I talk about people, so people, I mean they are one of the most important elements CBIS की अगर हम बात करें। so people, they may be internal users, जो आपने अभी लिखा मेरे साथ, internal users, and they may be external users, they may be external users। ये internal users भी हो सकते हैं और external users भी हो सकते हैं। users of information, that means they are users of information, or you can say useful information provided by CBIS। जैसे कि जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है, right? they have reported a profit, they have reported a profit of 500 CR in the last year, उन्होंने ये रिपोर्ट करा। So that is useful for external users। Government is going to, I mean, collect tax, government tax collect करेगी, employees को पता चलेगा, so that they are going to prepare their, as per their profits। अगर कम है, so they are going to make their strategies, ज्यादा है, तो they are going to push it more, right? उसके बाद I mean, as per our profit, market trends को आप ध्यान में रखोगे। I mean, what is your market trend, कैसे चल रही है चीजें। Now, internal users are over there at various levels, right? अब इन इंटरनल यूजर्स की अगर मैं बात करूं, so they do have at all level of hierarchy। बेटा ये हर एक लेवल पे मिलेंगे तुम्हारे को, हर एक लेवल पे। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द क्लर्क इटसेल्फ, उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इफ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट इटसेल्फ, उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। It is not necessary all the time that it is related to accounts, that may be related to HR as well। किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। ओके, नाउ इंटरनल यूजर्स जिनकी मैं भी बात कर रहा था, दे आर ओवर देयर एट एवरी लेवल ऑफ हायरार्की। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू एंड यूजर्स। एंड यूजर्स आर पर्टिकुलरली दोज पीपल, that means those persons who can use hardware, for retrieving the desired information। ये वो लोग हैं who can take out the information from the hardware। so they are those kind of authorized people, right? जो उस हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। Got it? So they are particularly, sir, can I call them that they can take benefit? Exactly, but benefit को अलग टर्म में मत ले जाना, that is related to insider trading also। Okay, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। This was all about people, this you can explain over there as well। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गंदी गंदी शक्लें मत बनाओ। अभी आगे चल के बात करेंगे, बढ़िया वाली, थोड़ी सी देर और, बस। उसके बाद once your mind will start diverting, I mean we will change the phenomena। Now if I talk about hardware, right? हार्डवेयर आप लोगों ने मुझे बताया था सर, दैट इज अ फिजिकल और टेंजिबल ऑप्शन। You said that this is a physical or tangible portion of computer system, यही बताया था। This is what you guys are already aware of। Okay, very nice। Now moving on to next part। अब देखो होता क्या है, how these things particularly work। So there are various kind of input devices। These input devices are over there, and they are whatever the information that is given by them, so that is either memory, right? उसके बाद this memory is divided either to register or that will be over there in cache। आपने बहुत बार देखा ना, कैचे कुकीज क्लियर करते हो आप बहुत बार,
राइट, कैचे कुकीज क्लियर करते हैं. आफ्टर दैट यू डू हैव ओवर हियर प्राइमरी मेमोरी. You do have over here primary memory, right? After that you do have secondary memory as well. होती क्या है ये तो बताओ, एक एक बात बताऊंगा मेरे लाल, एक एक बात बताऊंगा, अभी सब समझो. And after that there are certain kind of output devices. Okay, so this hardware you can say over here you can write control unit, or you can say arithmetical logical unit. So it's control unit, or you can say arithmetical logic unit, ALU. अब if I talk about this software का काम क्या होता है? What is the, I mean, if I talk about this hardware, sorry, इसका काम क्या होता है? It consists of devices. So hardware consists of devices that perform functions of input, data processing, storage, and output activity of computer. Right, अब देखो ये सारा जो काम है, this is a work which is relatable to hardware. ये सारा का सारा काम हार्डवेयर करता है. If I talk about the terms धीरे धीरे आगे चलते चलते, I mean अभी मैं आपको I will take care of only few terms over here. प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच, ये अभी बताऊंगा. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस यू आर ऑलरेडी अवेयर. स्टिल नहीं पता, दोबारा बताऊंगा. प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये भी अभी बताता हूं. इन हार्डवेयर इफ आई टॉक अबाउट दिस इनपुट डिवाइसेस, अब एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं. राइट, एक एक करके मतलब को गुस्सा आ रहा मेरे को आपको बता. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ठंड रखो यार, नंबर चाहिए ना, ऐसे चलो प्लीज. It's totally a different technique, right? It's totally a different technique. So these are the systems, these are the elements of hardware. ये सारी चीजें हैं which are over there covered into hardware. Now अब देखो, अब दोबारा ध्यान से देखना. So if I talk about input devices, अभी हमने बात करी that there was something written as input devices. अब ये input devices क्या होता है? Input devices are those devices by which user interacts with system. User interacts with system. अच्छा, आप एक बात बताओ. You are required to do something on system itself. आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है, किन चीजों को यूज करोगे? सर मैं किसको यूज करूंगा? पहले तो कंप्यूटर ऑन करूंगा. नहीं बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरैक्ट विद सिस्टम. आपको कुछ, अब प्लीज लीव योर मोबाइल फोन. अब बात को समझो कि आपको गूगल पे से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी, राइट? सो यू आर सिटिंग ओवर हियर, यू वांट टू नो अबाउट किसके बारे में? सर वो मियां, अरे नहीं यार, नहीं सर, क्या लिख रहे थे आप? मियां खलीफा? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं तुम लोगों ने. सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में बताओ? इसके बारे में लिख के चलो. यू वांट टू नो अबाउट नरेंद्र मोदी. सर हम नहीं है मोदी समर्थक, तो क्या हुआ? ना हो, एग्जांपल है. यू वांट टू नो अबाउट नरेंद्र मोदी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल यूज वेरियस काइंड ऑफ डिवाइसेस टू इंटरैक्ट विद योर सिस्टम. आप क्या करोगे? आप गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे. बेटा टाइप करने के लिए यू विल यूज कीबोर्ड, राइट? प्लस यू विल यूज योर माउस. अगर अमीर आदमी हो तो टच स्क्रीन यूज करोगे, राइट? यही करोगे. इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद योर सिस्टम तो क्या यूज करोगे? कीबोर्ड प्लस माउस. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब बहुत बारी क्या होगा, अब नाउ व्हाट विल हैपन, यू कैन ऑल्सो यूज योर माइक्रोफोन. ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ही सामने आ जाए, वैसा बोले पता ही है बता रहा हूं
क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है बात करनी पड़ जाए तो आप माइक्रोफोन लगाओ, यू आर गोइंग टू हैव अ माइक्रोफोन, राइट। आफ्टर दैट देयर मे बी अ स्टाइलस, राइट। स्टाइलस क्या होता है बेटा, इट्स जस्ट लाइक अ पेन जो आप अपनी स्क्रीन पे चला सकते हो। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट द वेरियस वर्जन्स ऑफ सैमसंग, तो सैमसंग के फोन के अंदर राइट में एक स्टाइलस आता है which you can use over the screen itself, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब sometimes what will happen over there that you are also required to scan something, so scanner or you can say barcode। सर barcode ये क्या होता है बेटा, पेटीएम देखा है, पेटीएम करो उसमें एक barcode आता है, that is a barcode। Each and everything which is over there, these things are particularly classified as your input devices which you are going to find out, which you are going to use अगर आप अपने सिस्टम से बात करना चाहते हैं तो। If you want to interact with your system, these are the things which are required over there। अब ये एक एक टर्म को पकड़ पकड़ के एकदम पूरा इलैबोरेट करके समझेंगे, समझ में आई बात? Was it difficult? It was not। Now very good, very good, very good। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। The next part, the next heading which we are going to have, that is processing devices। But please do remember, नाराज मत होना, I will explain it। अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट नाराज मत होना, ठीक है। Now there are certain kind of processing devices। ना ही बेटा क्लास छोड़ के जाना बीच में, प्लीज, ओके। Now if I talk about processing devices they refer to computer chips that contain CPU and main memory आप क्या करोगे, these are those chips which contain CPU and main memory of the system, they are those main chips। अब ये CPU क्या होता है, CPU is central processing unit। very good, central processing unit, बहुत बढ़िया, मेरे ईशान अवस्थी, बहुत बढ़िया। अब ये CPU जो होता है that is a hardware ना, हाँ, it is a hardware। So what is the role of CPU? CPU is that hardware which interprets and executes the software instructions, and coordinates that how all hardware will work together। देखो तुम्हारे को बेटा आईटी वाला बंदा नहीं बनना है, बट यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। आईटी में नहीं जाना अपने को नौकरी करने, नहीं, वो आईटी के सारे बंदे मिला के जितने पैसे ले रहे होंगे उतने पैसे ले रहे हैं, राइट। सो यू आर रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज अबाउट द सीपीयू। सो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इज गोइंग टू मैनेज ईच एंड एवरी काइंड ऑफ हार्डवेयर, राइट। Just like your brain is over there, अब ये बचपन वाले एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ, your brain is over there, your brain is managing your hands, right? डांस को कर रहा, your brain is managing your hands, that is managing your feet, every kind of hardware, every गलत जगह मत पहुंच जाना बता रहा हूँ, every kind of hardware is managed by your brain। That's why CPU तुम्हारे को बचपन में बताया गया था, that is your brain itself। It interprets and executes the software instructions and coordinates that with how hardware will work together। कि कैसे काम करेंगे। अगर आप जॉगिंग करने के लिए जा रहे हो, right? So your both of your hands and your feet they will move together along with your eyes। आंखों से भी बराबर देखना पड़ेगा। कहीं सामने वाला ट्रक में दे दिया तुमने सिर, तो सर हो सकता है किसी खूबसूरत लड़की से टक्कर हो जाए, अच्छी छोरे यहाँ आ जाओ वापस। Now if I talk about the next part, that is memory itself। राइट, अब ये सीपीयू देखा है तुम लोगों ने कभी? चलो पहले सीपीयू के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। सीपीयू देखा है कभी? नहीं सर, नहीं देखा। इट्स अ वेरी स्मॉल फ्लेक का, आई मीन सिलिकॉन का एक बहुत छोटी सी प्लेट होती है, वो सीपीयू होता है।
बहुत सारे छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके ऊपर। ट्रांजिस्टर वो रेडियो, अरे नहीं रेडियो नहीं यार, राइट ना। सीपीयू की अगर मैं और बात करूं, सो दिस सीपीयू इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू फ्यू मोर पार्ट्स, राइट। दिस सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, चलो 3 पार्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। फर्स्ट, देन इट्स सेकंड, देन इट्स थर्ड। द वेरी फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। CU, right? And if I talk about the next part, that is arithmetical and logical unit, that is ALU. Okay. If I talk about the next part, that is all about registers. So these are the 3 parts. बेटा इसके अंदर 3 functional units होती हैं. There are 3 functional units. CPU के अंदर ये वाली जो 3 है, 1, 2 and 3, they are the 3 functional units in CPU. ठीक है, got it. Now अब देखो control unit. If I talk about control unit क्या करती है? Control unit controls the flow of data. Controls the flow of data and instructions. From memory. अब क्या होता है, जो वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या चलो थोड़ा सा और बेटर बना के दूं, थोड़ा सा और बेटर बना के देता हूं, रुको। मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूं उसको, यू विल फाइंड इट मच इजी, ओके। बट उसके बाद मेरे को डिलीट करना पड़ जाएगा बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है। सो आई मीन द वॉट एवर द डेटा मेमोरी जो है आपके पास, right? Memory will give you various kind of data and instructions. अब मेमोरी होती है 100 बातें करती है तुम्हारे सामने। देखा है ना, दिमाग के अंदर कितनी बातें चल रही होती है। तुम सड़क पे से जा रहे हो, एक भिखारी आ गया पैसे मांगने के लिए, भाई भाई 5 रुपए दे दे, तो तुम्हारे दिमाग में 100 चीज आ जाएगी। उसको 5 रुपए दे दूं या नहीं दूंगा, तो ये शराब तो नहीं पी लेगा, क्या पता बेचारा सच्चा हो, क्या पता ये सही में फिल्मों की तरह हो, इसकी कोई मजबूरी हो, 100 चीजें आती। Now you are deciding a lot of things. So what is the role of control unit? That whatever the instructions which are over there, which you are giving, अब आप कह रहे हो नहीं मैं गाड़ी से उतर के जाता हूँ, इसको जाके 5 नहीं 50 रुपए देके आता हूँ। Now your mind will pass various orders कि गाड़ी से उतरना है, after that you are going to take out change लेने उसको दे के आना। गाड़ी से उतरने के लिए पैर चाहिए, वो तो है सर, है, अच्छा कांग्रेचुलेशंस। सो आई मीन दैट डेटा विल बी पास्ड ऑन टू द एग्जैक्ट प्लेस। अगर आप हाथों को बोलोगे कि उतर के चल के जाना है तो गलत हो जाएगा। कैसे जाओगे? नहीं जा सकते। सो दैट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन टू द एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, राइट? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इट कंट्रोल्स द फ्लो. It controls the flow of data and instructions which is given by memory itself, right? And to coordinate the work of all hardware devices together, जितने हार्डवेयर डिवाइसेस हैं यहाँ पर, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट, यू आर गोइंग टू यूज इट टुगेदर। गॉट इट? समझ में आया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दिमाग। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इट रेफर्स टू, इट परफॉर्म्स वेरियस arithmetical operations, right? I mean जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन,
राइट। ये सारी की सारी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है? ALU, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सर लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे बेटा अरिथमेटिकल होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब लॉजिकल होता है। ओके अच्छा, अब प्लीज डू रिमेंबर वंस यू विल ज्वाइन योर ट्रेनिंग यू विल कम टू नो अबाउट दैट एक्सेल पे ही हम कैसे फॉर्मूलाज लगाते हैं। यू विल कम टू नो अबाउट दिस पार्ट। ओवर हियर द कंप्यूटर यूजेस ALU, वहां पे कंप्यूटर इस ALU को यूज कर रहा होता है। गॉट इट? This ALU is particularly used, I mean जहां भी आप कैलकुलेशंस की बात कर रहे हो वहां पे ये यूज हो रहा है, right? If I talk about registers, right? Registers are high speed memory units. Are high speed memory units. ये क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी यूनिट फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, for storing small amount of data. Now these registers can be there in so many forms. Small amount of data मतलब जैसे कि आपका जो डेटा होता है ना, if I talk about computer systems, तो या तो वो 34 बिट होगा, या तो वो 32 बिट होगा या 64 बिट होगा, right? So that is all about a small amount of data that is required. Okay. Now if I talk about these registers, so these registers could be over there as accumulators. It may be over there in accumulators. Accumulators क्या करते हैं बेटा? देखो, कभी भी आपने एक्सेल चलाया? कभी एक्सेल चलाया? नहीं चलाया? नहीं चलाया, चलो कोई बात नहीं, मैं चला के दिखाऊंगा, ठीक है? अभी accumulators यूज करके दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट इज एड्रेस रजिस्टर्स, registers. After that, storage registers. Right? After that, miscellaneous. अच्छा, अब देखो एक्यूमुलेटर क्या होता है और कैसे काम करता है, अभी ध्यान से देखना। हाँ अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये मैंने कुछ वैल्यूज है बेटा विच आई हैव रिटन ओवर है, कुछ वैल्यूज लिखी है मैंने। जैसे ही मैंने इन वैल्यूज को सिलेक्ट करा, ओवर हियर यहाँ पे देखो राइट साइड पे नीचे, ये देखो यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स देख पा रहे हो? दिस इज जस्ट ड्यू टू एक्यूमुलेटर। ये मेरे को यहीं पे बता देता है, यहीं पे एवरेज बता देता है, यहीं पे सम, यहीं पे काउंट बता देता है, ठीक है? गॉट इट? समझ में आया? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटर्स। ये एक्यूमुलेटर्स की देन है जो तुम्हारे को यहाँ पे ये दिख रहा है। एड्रेस रजिस्टर, अब एड्रेस रजिस्टर मुझे क्या बताता है? राइट, अब एड्रेस रजिस्टर ये बताता है कि अगर मैं कोई फाइल ढूंढ रहा हूं, राइट, अगर मैं कोई फाइल ढूंढ रहा हूं तो वो फाइल कहां पर है, राइट? सो जस्ट लाइक मैंने कल रात को अगर कैटरीना कैफ की पिक्चर डाउनलोड करी थी, सर रात को क्यों करी थी? दिन में करी थी भाई, दिन में करी, राइट? अब मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे को मिल नहीं रही है, मैं क्या करूंगा? देखो मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा, राइट? मैं यहां पर जाऊंगा सर्च नोट्स में, यहां पर टाइप कर दूंगा, राइट? यहां पर कंट्रोल प्लस F दबाऊंगा और टाइप कर दूंगा सीधा। समझ में आया? कंट्रोल प्लस F दबाऊंगा, टाइप कर दूंगा, ये मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा कि ये कहां पे है, ठीक है? ये मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि मैं कहां पर हूं, ठीक है? वो फाइल कहां पर लोकेटेड है ये मेरे को बता देगा ना। सो दैट इज ऑल अबाउट एड्रेस, कि उसका एड्रेस क्या है, कहां पर है, ठीक है? आफ्टर दैट स्टोरेज ओवर हियर रेफर्स टू द टेम्पररी स्टोर्ड डेटा। जो आपकी टेम्पररी फाइल्स होती हैं जिसको आप परसेंटेज करके डिलीट करते रहते हो, टेम्पररी स्टोर्ड डेटा, यस, दिस इज कमिंग आउट ऑफ सिस्टम मेमोरी। बताता हूं, देखो ये भी करके दिखाता हूं, तुम्हारे सामने डिलीट करता हूं। देखो अब हम क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं हम लोग, ठीक है? सिंपल सा फंडा होता है, परसेंटेज टेम्पररी फाइल्स के लिए परसेंटेज, इसको आपने टाइप करा, ये खुल गई मेरी टेम्पररी फाइल्स। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैंने डिलीट कर दी। सो दीज टेम्पररी फाइल्स आर माई सिस्टम जनरेटेड। देखो टेम्पररी फाइल्स क्या लिखा हुआ है, द फाइल टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स इज अ सिस्टम फाइल, इफ यू रिमूव इट विंडोज और अनदर प्रोग्राम, इसको तो छोड़ देता हूं यार,
इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत हो गया, चलो बहुत सीख लिया तुमने भी। अब मेरा ज्यादा प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना, वरना पता चले मेरे को फोन कर रहा हो, सर विंडोज उड़ गई है, डाल के दिखाना जरा, ठीक है, लाइक वो है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट बेटा। सर ये तो हो गया मिसलेनियस, मिसलेनियस छोड़ो ना यार, हटाओ मिसलेनियस, बाकी और फंक्शंस को करने के लिए मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस को कह सकते हो फॉर जनरल पर्पस इट इज होता है। समझ में आया मेरे लाल सर? गॉट इट? ऐसे ही बस थोड़ा सा भरोसा रखना मेरे पे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा थोड़ा आगे चल के समझ में आएगा। मे बी अगर वहां पे मैं बता देता दैट वाज नॉट द राइट प्लेस। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। द नेक्स्ट पार्ट इज डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, अब ये डेटा स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? Right? It refers to those places where memory, it refers to that memory where data and programs are stored. जहां पर डेटा और प्रोग्राम्स को हम स्टोर करते हैं। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोबाइल का भी बता दूंगा बीच में, कैसे कैसे मोबाइल के अंदर भी कहां कहां पर डेटा यूज होता है। So the very first part is your internal memory. बेटा फोन में इंटरनल मेमोरी कितनी है? सर मेरे फोन में इंटरनल मेमोरी है 64 GB है। सर के बेटे 256 है। नाउ चलो आगे चलते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल मेमोरी, राइट, इंटरनल मेमोरी दैट रेफर्स टू रजिस्टर्स आर इंटरनल मेमोरी विद CPU. Internal memory with CPU. Okay, this internal memory is very fast. It is very fast, but होती बहुत कम है। आप किसी भी मोबाइल को यूज करोगे, the internal memory that is also known as in form of registers. So जो आपने यहाँ पर देखा है, this part which I was talking about, कहाँ गया? पेज ही भाग गया क्या? ये रहा ओवर हियर, दिस रजिस्टर इज दैट इंटरनल मेमोरी। ठीक है बेटा, अभी मेमोरीज के बारे में बात करेंगे। मेमोरीज सर क्या बताऊं? ओए 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 आशिक वापस वापस वापस। द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज ओवर, ये सर ये दूसरा, ये आप खुद ही क्यों बोलते रहते हो? ये मेरा दोस्त है जुगनू जो बीच बीच में बोलता है। सो दैट द एंटरटेनमेंट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ, राइट? सो द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज ओवर देयर, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। So I mean you need not to take care of anything. My friend Jugnu will take care of everything, right? Jugnu मेरा दोस्त है, वो तुम्हारी कॉमेडी अपने आप करवाएगा। Now primary memory. Primary memory is used by CPU for execution of programs. Right? अब एक बात बताओ, ये प्राइमरी मेमोरी मतलब ये मेन मेमोरी होती है? ये मेन मेमोरी होती है। दिस इज मेन मेमोरी विच इज यूज इन ऑर्डर टू रन योर प्रोग्राम्स प्रॉपरली। जो सीपीयू यूज करता है कि हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं बताता। सो दिस मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दिस इज व्हाट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, राइट? नाउ इन मेन मेमोरी एनी लोकेशन कैन बी यूज्ड, एनी लोकेशन can be accessed in any order. In any order. किसी भी ऑर्डर में, आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी लोकेशन में यूज की जा सकती है, राइट? इट इज नॉट फॉर स्टोरिंग डेटा। ये डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होती है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ओवर हियर दिस इज अ इंटरनल मेमोरी व्हिच इज यूज्ड बाय सीपीयू। दिस इज फॉर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स। अभी भी समझ नहीं आया? अच्छा एक बात बता दो। सो दिस मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दैट इज ओवर देयर फॉर टू टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम और रोम पता है, ये सुना है? हाँ, रैम और रोम सुना है हमने, सुना है, वेरी गुड, सुना है, बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट इज रैम?
वो रैम क्या होती है सर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बात है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है सर? मेरे रोम में वो बस ही है, वो नहीं नहीं, ये सब पेपर में मत करना। रीड ओनली मेमोरी, रीड, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रीड ओनली। ठीक है, थोड़ा सा और अब रीड, रैम और रोम तो है, राइट, रैम और रोम तो है। वो दुकानदार तुम्हारे को कहता सर 6 GB 64 GB तुम ले लेते, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? क्या मतलब डिफरेंस क्या है रैम और रोम में, क्या डिफरेंस है ना? चलो अब बताता हूं। रैम और रोम का डिफरेंस पढ़ते हैं पहले। ये रैम है, राम राम भगवान नहीं है, राम नहीं है, वो रैम है, ठीक है। बच्चा मेरे को कहता सर आपने राम और रोम में फर्क, राम नहीं भगवान नहीं, अयोध्या मत लिख देना बीच में। सो आई मीन इफ आई टॉक अबाउट रैम, देखो बेटा कुछ नहीं होता है, एवरी टाइम इफ आई टॉक अबाउट बेसिक्स, और ये जो बेसिक्स होते हैं ये कॉमन होता है, वट एवर यू हैव रिटन ओवर हेयर एंड हेयर, जो भी दोनों में कॉमन है वो बेसिक्स में लिखते हैं, ठीक है। बेसिक्स आर नेवर रिक्वायर्ड टू बी मेमोराइज, कभी भी बेसिक्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, राइट। सो आई मीन इफ आई टॉक अबाउट रैम, रैम का यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है रैम का? रैम इज यूज्ड एज मेन कंप्यूटर मेमोरी। सर आप उल्टा नहीं लिखवा रहे? नहीं। What is the use of ROM? ROM is used as for storing micro programs. Storing micro programs. Control instructions. Control instructions. Right? So that machine जो है वो properly operate. This is a kind of memory. Over here there are certain kind of programs or control instructions इधर होते हैं जहां पे इनको यूज किया जाता है। If I talk about RAM, RAM is a temporary memory. It's a temporary memory, but ROM is your permanent memory. Okay. If I talk about machine itself, if I talk about devices, if I talk about programs, right? So programs and machines use RAM. वो RAM को यूज करते हैं। RAM का यूसेज, दिस इज ओवर देयर इन टर्म ऑफ फंक्शंस, कि क्या क्या कर सकता है, एंड दे आर यूजर्स, कि RAM यूज कहां कहां पर होती है। मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं, व्हाट्सएप चला सकता हूं दिन रात, राइट। सो दैट इज फंक्शंस। मेरा यूज कौन कौन कर रहा है? तुम लोग कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं ना, तुम लोग यूज कर रहे हो ना, मैं फायदा मत उठा लेना मेरा गलत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट ओनली मशीन्स कैन यूज ROM. You will hardly find ROM in any of the programs. Okay, got it? अब बेटा रैम पे आपने कुछ भी लिख दिया, whatever the data which is over there, आपने RAM पे कुछ भी लिख दिया, you can read or rewrite it. You can read it or you can rewrite it. आप उसको लिख सकते हो, उसको दोबारा से रीराइट भी कर सकते हो। बट इफ आई टॉक अबाउट ROM, यहां पर इट कैन बी रीड बट नॉट रीड। पत्थर की लकीर है वो एकदम, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट? So over here it refers to rewriting, ठीक है। Over there it refers to memory. कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? 4 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और लिख लो। The next point may be over there being like चलो ठीक है, storage of data.
रैम के अंदर यू कैन स्टोर, ओके, स्टोरेज ऑफ डेटा कैन बी डन ओवर हियर। रोम डज नॉट अलाउ स्टोरेज ऑफ डेटा। रोम जो है स्टोरेज ऑफ डेटा को अलाउ नहीं करता, ओके। अब ये जो राम और रोम तुमने पढ़ा है, दिस इज ओनली अंडर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, गॉट इट। इट इज ओनली अंडर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आता है राम और रोम। सर राम और सीता होना चाहिए, तो बेटा डिफरेंस थोड़ी होगा, फिर तो एक ही बात है ना। आजकल के बच्चे ही बहुत गजब है, उसको बोलो कोई मतलब आजकल भगवान के बारे में कह सकते हैं, राम सीता हैशटैग लव बर्ड्स, ऐसे यार भगवान के बारे में तुम्हारे को पता नहीं है मतलब। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रैम और रोम। द नेक्स्ट पार्ट विच इज ओवर देयर बेटा, दैट इज ऑल अबाउट द कैच मेमोरी। सर कैच वो क्रिकेट वाली नहीं, द कैच मेमोरी। Catch memory which is over there, it is smaller and very faster memory, right? What is over there with catch? It stores the copies of data from most frequently used main memory locations, right? So that it can be done more rapidly, right? So that processor can exit it, so that processor can use it. Processor can use it more rapidly. Right? Catch as you can say, एक और पॉइंट लिखते हैं, चलो आप साथ में। Catch is the property of location of reference. Right? It is also used to speed. It is also used to speed up the difference between register and primary memory speed. And primary memory speed, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी स्पीड है, राइट, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी स्पीड है, उसको स्पीड अप करने के लिए कैसे सर ये यूज कैसे होता है? बेटा देखो बहुत बार क्या होता है, whenever you are over there at Google, तुम कहाँ जाते हो? गूगल बाबा पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, यू स्टार्ट टाइपिंग समथिंग। एक वेबसाइट है जिसको तुम रोज विजिट करते हो, रोज। समझ पा रहे हैं लड़के, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जैसे एक वेबसाइट है बेटा, मैं उसको रोज विजिट करता हूँ। सर वो तो पर मैं इनकॉग्निटो पे चलाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। एक वेबसाइट है विच बिलोंग्स टू ICAI.org, जिसको मैं रोज विजिट करता हूँ, राइट? सो आई मीन व्हाट विल हैपन ओवर देयर? देखो जो क्या होगी ना, जो स्पीड का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बेटा। अच्छा पहले एक बात बताओ मैं कि अगर हैव यू सीन फ्लाईओवर? कैसी बात कर रहा हूं, जाता हूं मैं रोज। अच्छा फ्लाईओवर से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, सो दैट इन स्पाइट ऑफ that you guys are struck in traffic, by using flyover or by using bridge, one can be there at the destination at a very much earlier, very much earlier you can be over there at the destination point in a less time, in a lower time as per which was required. अगर आप फ्लाईओवर से जाते हो तो कम टाइम लगता है, नीचे से जाते हो तो ज्यादा टाइम लगता है। एग्जैक्टली, सो दिस कैच मेमोरी हेल्प्स यू गाइस, इट हेल्प्स यू टू गिव यू दैट ब्रिज। ये उसी ब्रिज का काम करती है, उसी ब्रिज का ये काम करती है। अब देखो, सो जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट डे यू टाइप ICAI.org, सेकेंड डे क्या होगा, दैट ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट एज सजेशन, you will get that as your
सजेशन ओवर देयर, वो आपको एज अ सजेशन दे देगा। वहां पर ICAI.org पे जाना, क्लिक करो, फटाफट ले जाएगा, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो उसने क्या किया, वट एवर द थिंग्स, वट एवर द आई मीन द वेबसाइट्स विच यू हैव यूज्ड, उसने उसको उठाया, एज अ रेफरेंस यूज करा और आपको दे दिया, ताकि द वर्क कैन बी मच डन इन अ मच स्पीड, राइट। सो जस्ट लाइक दैट जब हमें डेटा ढूंढना होता है, सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डेटा, राइट, विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, जिसको आपने बहुत ज्यादा बार यूज किया है, राइट। तो उसको क्या होता है, वो कैच मेमोरी में आ जाता है, वो कहता है ये तो रोज ही आता रहता है, राइट। चलो इसको छोड़ो, आप नेटफ्लिक्स है आपके पास नेटफ्लिक्स है, या आपके पास Amazon प्राइम है, राइट, कुछ भी आपके पास, यू यूज्ड टू विजिट इट डेली, तो वो डेली दिखाता है, राइट। द ऑप्शंस, इवन ऑप्शंस आ जाते हैं वहां पे, रिज्यूम वॉचिंग, तो उसको ये भी पता है कि लास्ट टाइम आप कहां पे देखते देखते छोड़ के चले गए थे, यू आर वॉचिंग अ प्रोग्राम, यू लेफ्ट दैट विद मी, राइट। सो उसको ये भी पता है कि ये यहां पे छोड़ के चला गया था, तो वहां से आपको शुरू करवाता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैच की मेहरबानी है ये, राइट, गॉट इट। सो इट गिव्स यू अ स्पीड अप। सर इतना बहुत है जितना आप बता रहे हो, जानलेवा किसकी। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, दिस वर्चुअल मेमोरी, इस वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात करते हैं। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, राइट। सो वर्चुअल मेमोरी इज पर्टिकुलरली एन एलोकेशन, it's an allocation of hard disk space to help RAM. It is allocation of a hard disk space to help RAM. हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर स्पेस जो रैम को हेल्प करता है, राइट। इट इज, अच्छा अब ये भी आप जानते हो, इट इज एन इमेजिनरी डेटा, इट इज एन इमेजिनरी मेमोरी एरिया, और यू कैन से इमेजिनरी मेमोरी एरिया supported by some operating systems, राइट। अच्छा देखो, बहुत बार क्या होता है, अगर कंप्यूटर जो है आपका दैट लैक्स रैम, वहां पे रैम जो होती है कम पड़ जाती है, जैसे आपने बहुत बार देखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले इस पॉइंट को बताता हूं। एलोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस, दैट इज एन इमेजिनरी मेमोरी एरिया। एवरी टाइम जब भी आप अपनी सी ड्राइव देखते हो, तो उस सी ड्राइव में सम एरिया इज ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड, वो हमेशा ऑक्यूपाइड होता ही है। आप जिससे पूछते हो तो वो बताता है कि यार ये एरियाज विंडो ले जाती है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द हार्ड डिस्क, आप अपनी हार्ड डिस्क अगर विजिट करो, राइट, सो व्हाट यू विल फाइंड ओवर देयर, दैट एरिया इज ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। सो दैट इज ऑल अबाउट योर वर्चुअल मेमोरी, गॉट इट। बेटा अगर आपकी सी ड्राइव के अंदर देयर इज 200 GB, 200 GB है आपके पास वहां पे, राइट, आउट ऑफ दिस व्हाट यू विल फाइंड 86 GB इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, इट इज यूज्ड बाय विंडोज उसको ऑलरेडी यूज करता है, ओके, गॉट इट, राइट। अब इसका और क्या यूज होता है, बहुत बार व्हाट यू सी दैट द कंप्यूटर इज अनेबल टू रन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और एप्लीकेशन यूजिंग द रैम। सो यहां पे इस वर्चुअल मेमोरी को यूज किया जाता है, विच इज नोन एज अ पेजिंग फाइल ऑल्सो, ओके। दैट आई मीन इन ऑर्डर टू रन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको रैम चाहिए होती है, रैम कम पड़ जाती है, देन कंप्यूटर यूजेस दिस वर्चुअल मेमोरी, इसे कहते हैं पेजिंग फाइल। नोट कर सकते हो, ठीक है। द लास्ट पॉइंट विच इज ओवर देयर, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। चलो अब यहां पर लास्ट पॉइंट क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी इज दैट मेमोरी विच इज अवेलेबल इन बिगर साइजेस, to store programs and data,
So this secondary memory that is accessible by CPU. Accessible by CPU through channels, right? अब उन channels को आप use करते हो. After that, whatever the data which is over there in the secondary memory, देखो सब आपने किया हुआ है. क्या करता है एग्जाम में? कुछ नहीं करता है. ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ खेल खेलता है यहाँ पे. Whatever the data in secondary memory that is over there, it is moved on to input memory, or you can say main memory, or you can say primary memory. इसके अंदर आप इसको ले आते हो by using some channels. क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी होता है. हाँ? रोज करते हो ये? रोज देखो कुछ नहीं होता. मैं बताता हूँ, देखो कैसे होता है. एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ, करके दिखाता हूँ यार, करके दिखाता हूँ. देखो क्या होता है बेटा, बहुत बार आपका एक फ्रेंड आपको एक मूवी देता है ऐसी एक पेन ड्राइव में डाल के कि भाई ये नई पिक्चर आई है, ये देख लियो. सो आप क्या करते हो? जल्दी बताओ आप क्या करते हो. ठीक है, आप यहां पे हो और आपका एक फ्रेंड है यहां पर, राइट? आपका ये फ्रेंड आपके पास आता है, कहता भाई नई मूवी आई है, एकदम झकास है, ये ले देख लियो. सर कौन सी वाली मूवी है ये? मुझे क्या पता. अब तुम्हारा दोस्त है, अगर इसका नाम है छिछोरा, तो मतलब ये कैसी मूवी है? तुम्हारा अच्छी मूवी दी है इसने, तुम्हारे को मूवी दी है साईं बाबा की. सो इसने मूवी दी है, व्हाट यू विल डू? सर इसने जो मेरे को मूवी दी है वो किसमें है? पेन ड्राइव में है. नाउ आप इससे ये पेन ड्राइव लोगे, आप क्या करोगे? इसको कॉपी कर लोगे अपने लैपटॉप में, या कॉपी कर लोगे अपने सिस्टम में, और हाथ के हाथ इसको पेन ड्राइव वापस कर दोगे. आप इसको पेन ड्राइव में ले लोगे, उसको वापस कर दोगे. यही होगा, यही होगा बेटा, और कुछ तो नहीं होगा. बोलो जल्दी बोलो, यही होगा ना? पक्का ना? अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है. दिस पेन ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी, दिस पेन ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी, एंड योर सिस्टम वो अपनी प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसको ले लेगा. जब भी वो कहेगा यार ये कॉपी कर ले, कॉपी कर लोगे. दैट्स इट, सिंपल. सेकेंडरी मेमोरी से वो कॉपी. अब आप क्या करोगे? ऐसे करके आप ये पेन ड्राइव घुसेड़ोगे, टड़ंग की आवाज आएगी, टड़ंग की आवाज. योर डिवाइस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड. आफ्टर दैट यू विल कॉपी इट एंड थिंग्स आर डन. So I mean it is done by CPU through various channels. That may be input channel, output channel. उससे क्या होगा बेटा? Secondary memory data will be copied into your input memory, or you can say primary memory. Input memory मत लिखना, primary memory है तो primary memory ही लिखना. Okay, got it? Yes please. So these secondary memo, no, it's memo. So it's USB pen drive, right? हार्ड ड्राइव. सर मतलब हार्ड डिस्क? हाँ. सीडी, डीवीडी, राइट? कुछ स्मार्ट कार्ड्स, ब्लूरे डिस्क, बहुत सारी चीजें होती है. सो दे आर सेकेंडरी मेमोरी. सबसे आसान था ये एकदम, बाकी मुश्किल है, बताओ तुम्हारे बारे. सो आई मीन इफ आई टॉक अबाउट secondary memory, there are some advantages, or you can say features of secondary memory. वो भी थोड़ा सा देख लो, पता होना चाहिए. अभी कोई दोस्त आएगा तो उसको बोलना सेकेंडरी मेमोरी में डाल के दे दे, आई विल मूव इट टू माय प्राइमरी मेमोरी. समझ ही नहीं पाएगा. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज इट्स नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल, दैट मीन्स दे आर परमानेंट इन नेचर. अगर आपने ये पेन ड्राइव को निकाल भी लिया बाहर, तो ऐसा नहीं होगा कि डेटा उड़ जाएगा. नहीं, डेटा विल बी ओवर हियर इन दिस पेन ड्राइव ओनली. डेटा इस पेन ड्राइव में ही रहेगा. कितने जीबी की है ये? 32 जीबी. तो पिद्दी सी खो जाती है, पता नहीं चलता. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रेटर कैपेसिटी. कैपेसिटी अच्छी खासी है यार, कैपेसिटी अच्छी खासी है. 32 जीबी बहुत है, बहुत, राइट? आफ्टर दैट ग्रेटर इकोनॉमी. ग्रेटर इकोनॉमी इकोनॉमिकल है बेटा, महंगी नहीं है, सस्ते रेट पे अवेलेबल है. 32 जीबी की पेन ड्राइव कितने की मिलती है? शायद 500 रुपए की मिलती होगी, 500 रुपीज की मिलती होगी, बस. दैट्स इट. इससे ज्यादा की तो नहीं मिलती. ग्रेटर इकोनॉमी की.
बट देयर इज अ स्लो स्पीड, स्पीड थोड़ी कम है एज कंपेयर टू रजिस्टर्स एंड प्राइमरी स्टोरेज। जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, जब आप इसको कॉपी करते हो, जब आप इसको कॉपी कर रहे हो, जब आप इसको मूव कर रहे हो, सो बट यू विल फाइंड द स्पीड ऑफ द पेन ड्राइव, सर बढ़िया वाली लो ना, अच्छा गिफ्ट कर देना एक तुम बढ़िया वाली, तो जो इसकी स्पीड है वो कम होती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी स्टोरेज, राइट। एंड इट इज पोर्टेबल, इट इज पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं 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 मेरे लाल, मतलब द सेम कैन बी यूज अक्रॉस सो मेनी डिवाइसेस। आप इसको मेरे सिस्टम में लगा सकते हो, अपने सिस्टम में लगा सकते हो, कोई झंझट नहीं है, ये बिल्कुल नाराज नहीं होगा, राइट। गॉट इट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट फॉर दिस हेडिंग इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, अब ये आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, राइट। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, पहले तो मेरे को ये आउटपुट डिवाइस बताओ। ये सब समझ में आ गया, देखो ये सब समझ में आ गया। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर, कैच, ALU, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस, द लास्ट पॉइंट। आर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस थ्रू, और छोड़ो यार सीधा लिखो, आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स टू पार्ट्स। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। इट इंक्लूड्स टू पार्ट्स ओनली, right? The very first part is computer monitors. Computer monitors, right? So these computer monitors and printers, ये होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। अब थोड़ी सी कंप्यूटर मॉनिटर्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। So these computer monitors are further divided into two parts. The very first part is CRT and LCD. ये LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, घंटा नहीं पता था आज तक तुम्हारे को LCD की फुल फॉर्म क्या होती है। सर अब तो LED यूज करते हैं, उसके बाद वो वाली कर्व्ड स्क्रीन आ गई है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, 4K टेक्नोलॉजी, 5K टेक्नोलॉजी। द वेरी फर्स्ट पार्ट है CRT, जो पहले आया करता था, दैट इज कैथोड, कैथोड रे tube, right? LCD is liquid crystal display. पूछ लेना किसी से, किसी को पता होगा एकदम, LCD की फुल फॉर्म नहीं पता लोगों को, राइट। ओवर हियर बेटा क्या होता है यहाँ पे कि CRT के अंदर देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, एक वैक्यूम ट्यूब होती है, जिससे इट यूजेस अ इलेक्ट्रॉनिक गन को यूज करते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आते हैं। छोड़ो हटाओ, सिर्फ इतना ही लिख लो, यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब होती है। तुम्हारे को टीवी की दुकान थोड़ी खोलनी है, राइट। प्लस इलेक्ट्रॉन गन होती है जो आपको सीधा सीधा इट गिव्स यू एन इंप्रेशन ऑन योर स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन पे आपको सीधा डेटा निकाल के देती है, ठीक है। अब LCD इज पर्टिकुलरली लो पावर्ड, देखा नहीं, LCD बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लो पावर टेक्नोलॉजी, राइट। सो ओवर हियर यहाँ पे क्या होता है, देयर आर सम रॉड शेप्ड मॉलिक्यूल्स, रॉड शेप्ड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स। So they chart their orientation, plus electrical current flows through them, and they are given at your screen, and the output is over there at your screen. Okay, visual on screen, video output आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, you get the visual on screen. CRT इसको यूज करता है, वो इसको यूज करता है, ठीक है। अब एक और चीज, अच्छा प्रिंटर्स के अलावा एक और पार्ट होता है यहाँ पे जिसको हम स्पीकर्स कहते हैं। सर स्पीकर्स कैसे, ब्लूटूथ वाले, JBL वाले, अरे अरे एक मिनट बेच रहे नहीं है यहाँ पे कोई भी स्पीकर, बाइफर्केशन दी ही नहीं है तुम्हारे को आगे। प्रिंटर के अंदर भी बेटा बहुत सारे टाइप के प्रिंटर आते हैं, दे इंक्लूड लेजर प्रिंटर,
राइट। जैसे आई मीन दे फॉर्म यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेसेस को यूज करता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर जिसके अंदर इंक डलती है, राइट। देयर इज अ काइंड ऑफ प्लॉटर भी होता है, शायद आपने सुना, प्लॉटर सुना, नहीं सुना छोड़ो, हटाओ, रहने दो, छोड़ो यार, तुम लोग पंगा मत लो, राइट, गॉट इट। दे आर आउटपुट डिवाइसेस। नाउ व्हेनेवर यू आर यूजिंग any kind of output devices, that output devices they will give you output। मतलब तो सही है ना, एक ही तो बात है बेटा, यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर सिस्टम्स, यू आर यूजिंग योर प्रिंटर, सो आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए, यूजिंग योर आउटपुट डिवाइसेस, you will get the output itself, you will get the output itself। This output may be over there in text, that may be graphical, that may be over there in text, that may be graphical, that may be audio, that may be video as well। किसी भी फॉर्म में ये सारा फंडा आपका हो सकता। अब that's it। अब अगली क्लास में मिलेंगे, where we are going to continue with this part। Okay, for the time being, bye bye, take care of yourself, we'll catch you next class। अगली क्लास में फिर से ऐसे शुरू करेंगे, बोर हो लो, ब्रेक लो, मुंह धो के आओ, पानी पी के आओ, फिर वापस। हम तो आ जाएंगे, आप कब आओगे? आराम से आएंगे, जल्दी। खूब, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।